So in this video, I want to talk about how to write the electronic configurations in the 1s2 notation. And I also want to kind of get on into the concept of how the electronic configurations are written for different elements. So first of all, what you gotta learn is the 1s2 notation, ठीक है? अभी तक हमने जो notation पढ़ी थी ना, was called the box notation, right? The box notation. और हमने देखा था कि box notation को use करके हम जो electronic configurations हैं different atoms की, उनको हम कैसे represent कर सकते हैं, like this could be 1s2, then 2s2, 2s, and then 2p, and then उनके अंदर फिर electrons draw करके, and that's how we represented the electrons in an atom. But now what we're going to do is basically we're going to learn this notation because this is more simpler and easier to write than the box notation. ठीक है? So first thing I want you guys to know is कि इस notation के अंदर, right, in the 1s2 notation, we do not include orbitals. तो बॉक्स नोटेशन में हम जिस तरह सारे p ऑर्बिटल्स की बात कर रहे थे, इस s ऑर्बिटल की बात कर रहे थे, इस s ऑर्बिटल की बात कर रहे थे, ये वाला काम हम लोग इधर नहीं करेंगे, ठीक है? इधर हम क्या करेंगे, all this represents is जब 1 है, that represents the shell, ठीक है? जो 1 के आगे चीज़ है, could be s, could be p, could be d, could be f. This is going to represent the subshell, ठीक है? Subshell. And then उसके ऊपर का number, which for example if I take 2, is going to represent the total electrons in that subshell. So for example, if I look at the box notation over here, and I go ahead and I draw electrons over there, I draw electrons over here, I draw electrons over here, and I draw electrons over here. तो अब मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि जो 2p ऑर्बिटल है, सॉरी 2p सबशेल है, उसके अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2s में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? तो it's basically not going to be talking about the orbitals, but instead बात जो है वो subshells तक महदूद रहेगी. I hope महदूद means limited. If it means something else, which I'm not sure if it does or not, I'm really sorry if it means something different. ठीक है? तो this is 1s notation, and another thing I want you guys to know is कि s orbital, s subshell के अंदर total जो है ना वो 2 electrons आते हैं, ठीक है? फिर p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. डजेंट मैटर कि ये सेकंड शेल का p है, थर्ड शेल का p है या फोर्थ शेल का p है, ठीक है? उसके अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एंड यू कैन डू दैट. आपका जो 4p होएगा ना, अगर बॉक्स नोटेशन बनाओ तो उसकी भी बॉक्स नोटेशन ऐसे होगी. देन यू फिल दिस अप एंड यू रियलाइज कि you actually do have 6 electrons, ठीक है? So the p subshell has a total of 6 electrons, जिसमें से 2 इस ऑर्बिटल में आएंगे, 2 इस ऑर्बिटल में आएंगे और 2 ये z वाले ऑर्बिटल में आएंगे, ठीक है? I'm not really gonna go into much depth over there. So d के अंदर हमारे पास आते हैं 10 electrons and f में कितने आते हैं, you don't need to know that, ठीक है? So you need to know about the total electrons that can be in the s, p and d subshells. So now let's take an example, right? Let's take an example. Let's see how this works. So I have this chemistry book right here, जिसका मैं इस्तेमाल करूँगा, and what I'm gonna do is I'm gonna write the electronic configuration of oxygen. Right? तो हमारे पास ऑक्सीजन है और हमारे पास ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8. तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगी, ठीक है? 8, so 8 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल के अंदर 2 आ जाएंगे और फिर दूसरे शेल के अंदर remaining 6 electrons आ जाएंगे. So let's draw that, ठीक है? 1s2,
ठीक है, अब पहले शेल के अंदर सिर्फ S सब शेल होता है, so we're not gonna write 1p or 1d. ठीक है, so now we are gonna start off with the second shell, और सेकंड शेल के S सब शेल में कितने आएंगे, 2 आएंगे. ठीक है, and then now we have 2p, और अब हमारे पास कितने रह गए, क्योंकि we already used 2 over here, 2 over here, तो ये 2 यहाँ पर आ गए, इस 6 में से 2 यहाँ पर आ गए, तो 6 के जो बकाया बचेंगे 4 वो इधर आ जाएंगे. ठीक है, so that's gonna look something like this. Okay, 1 is 2, 2 is 2, 2p4. तो इस तरह you can uh, draw them for nitrogen, which is gonna be n and 7. So that's gonna be 1 is 2, 2 is 2, and then क्योंकि oxygen से कम है, so it's gonna be 2p3. And then in the same way we can go ahead and write the electronic configuration for sodium, जिसके अंदर हमारे पास 11 protons and electrons होते हैं. So that's going to be 1s2, 2s2, right, 2p6, and then it's going to be, अब क्योंकि 3 शुरू हो जाएगा, so we're going to write 3, और 3 का पहला सब शेल कौन सा आएगा, S, and that's going to be 3s1. So you can see that's going to be 4 oops 4 electrons जो है ना वो ये हो गए, 4 and 6 10, 11, and you can see 11 electrons हमने जो है वो fill करवा दिए. So now let's take another example, and I'm actually going to take chlorine over here. तो chlorine को देख लेते हैं. Chlorine is 17, right? So let's write this down. This is going to be 1s2, 2s2, 2p6. So this is 10 already, क्योंकि 4 और 4 और 2 2 is going to be 4, 4 plus 6 is 10. So then अब हमने 7 और electrons complete करने, so 3s के अंदर 2 आ जाएंगे, 3p के अंदर ये हो गए 12, और पीछे हमारे पास रह गए 5. ठीक है, तो अब अगर इन सारों को काउंट करें, 10, 12, 17. ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमने पूरे करवा दिए. ओके, अब लेट्स टॉक अबाउट आर्गन. अच्छा, अब नोबल गैसेस की क्या खसूसियत होती है. इफ़ यू गाइस सी कि हमने पढ़ा था ना, नोबल गैसेस के जो आउटर शेल्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं. ठीक है, अगर आप नोटिस करें तो यूल रियलाइज कि ऑक्सीजन में पी नहीं कंप्लीट. ठीक है, पी के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यहाँ पर उसके पास 4 हैं. ठीक है, यहाँ पर भी पी इनकम्प्लीट है, यहाँ पर एस इनकम्प्लीट है, यहाँ पर जो है वो फिर पीक इनकम्प्लीट है. तो कहने की बात यह है कि जो आउटर शेल है ना वो बेसिकली इंसानों का, या आउटर सब शेल जो है ना वो इंसानों का इनकम्प्लीट है. ठीक है, इट्स नॉट फुली कंप्लीट. वेयर एज जो नोबल गैसेस होती हैं ना, हमने पढ़ा था कि उनके जो शेल्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं. तो अब ए लेवल्स में आकर क्योंकि हम सब शेल्स को भी देख रहे होते हैं, तो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर रियली ट्राइंग टू से इसके उनके सब शेल्स की भी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कंप्लीट होएगी. एंड वी कैन लुक एट दैट बिकॉज वी कैन से आर्गन हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 18. अब जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे ना, सो दैट इज़ गोना बी क्लोरीन से एक ज़्यादा, तो इसका मतलब है 3p के अंदर 6 हो जाएंगे. ठीक है, एंड यू कैन सी कि अब ये सारे ऑर्बिटल्स सारे सब शेल्स जो हैं वो एक्चुअली फिल्ड हैं. ठीक है, एस के अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 2 हैं, पी के अंदर 6 आ सकते हैं, 6 हैं, फिर एस के अंदर 2, फिर पी के अंदर 6. सो दी सब शेल्स आर एक्चुअली फिल्ड. एंड व्हाट यू कैन डू ओवर हियर कि अब आर्गन के बाद जो भी आएंगे ना, सो लेट्स से आर्गन के बाद हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स लाइक पोटेशियम. ठीक है, एंड वी हैव कैल्शियम. तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कैसे लिख सकते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि potassium is 19, right? So what you can do is actually you can draw this box symbol in which you can write AR,
and then what you can do is you can write 4s1. ठीक है, और उसका क्या मतलब है, I'm just gonna explain it in a second. उसका बेसिकली ये मतलब है कि ये देखो, ये पूरी चीज़ जो है ना, ये AR की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो वो कह रहा है कि बजाय इस पूरी चीज़ को लिखने के ना, यहाँ पर डायरेक्ट AR की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डाल दो और उसके बाद 4s लिख दो। और उसके बाद 4s क्यों लिखा वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि लेट्स से यहाँ पर अगर हम 4s बनाते तो हमारे पास बेसिकली जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हमारे पास जो 4s होता है ना, दैट हैज़ लेस एनर्जी देन द 3D ऑर्बिटल। ठीक है, तो लेट्स से कि यहाँ पर 3p वाला और 3p वाला जो सबशेल है वो फिल हो गया है। अब अगले आने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो किस सबशेल के अंदर जाने चाहिए, क्या वो 4s के अंदर जाने चाहिए या क्या वो 3D के अंदर जाने चाहिए। ठीक है, ask yourself that question and 4s is the correct answer because it has the lower energy। ठीक है, तो 4s के अंदर आएंगे and फिर अगर लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन आया so that's going to be 4s1, दो इलेक्ट्रॉन्स आए that's going to be 4s2, उसके बाद कोई अब तीसरा इलेक्ट्रॉन आया so then it's going to go into 3D and that's going to be 3D1। और वो किस लिए, उसकी रीज़न क्या है, वो इसलिए क्योंकि obviously S subshell can only hold a maximum of 2 electrons। ठीक है, so what you can do is this is actually a really neat way of writing this। अब पोटेशियम में बजाय आप पूरी ये चीज़ लिखने के you can just write कि अच्छा AR की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सारी और उसके बाद 4s1। So, ठीक है, so you can represent it like that, and then over here you can do the same thing। AR is equal to 4s1, sorry 4s2 क्योंकि this is calcium s1, right? So you can do that and that's really cool। And then what you're going to do is कि इसके बाद जो आएंगे then you can add 3D and then you can keep on going and going and going। So yeah, let me actually do a few with in which the 3D subshell is actually being filled। So I have an example over here of magnesium। ठीक है, magnesium, and magnesium is what magnesium is actually 25, right? 25, so this is going to be 1s2, 2s2, 2p6, right? 3s2, 3p6, so this is like 10, these are 10, these are 18, so 4s 4s में हमारे पास आ जाएंगे 2, so that's 20, और फिर 3d5, 3d5, ठीक है, 3d5, and if you count all of these now तो you will realize कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्चुअली मिलाकर जो है वो 25 के बराबर हो रहे हैं। एंड आपको एक और तरह से भी लिखा हुआ नज़र आ सकता है इसके अंदर कि 3D पहले लिखा हो 4s बाद में लिखा हो, that still doesn't matter। ठीक है, आप उस तरह लिख लें, that still doesn't matter। इस वाली नोटेशन में आप 3D को पहले लिख सकते हैं, लेकिन लेकिन अभी मेरी बात गौर से सुनना, आप उसको 4s से पहले भी लिख लें लेकिन उसे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले फिल 4s ही होएगा। सो अब होता क्या है, बेसिकली होता कुछ यूँ है कि जो हमारे पास बेसिकली 4s वाला ऑर्बिटल होता है ना, द 4s ऑर्बिटल, वो क्योंकि 3D से एनर्जी की टर्म्स में लोअर होता है, इट टेंड्स टू गेट फिल्ड फर्स्ट। ठीक है, टेंड्स टू गेट फिल्ड फर्स्ट, टू गेट फिल्ड फर्स्ट। लेकिन लेकिन ये काम जो है ना, ये बेसिकली ये हो रहा होता है सारे एलिमेंट्स के लिए, बट द कैच इज कि देयर आर टू एक्सेप्शंस टू दिस। और वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो एक्चुअली हैं हमारे पास क्रोमियम एंड कॉपर। सो क्रोमियम का सिंबल है Cr एंड कॉपर इज Cu। ठीक है, इन दोनों एक्सेप्शंस के अलावा ये वाला जो रूल है ये सारे एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। एंड व्हाई आर दीज एक्सेप्शंस, ठीक है, व्हाई आर दीज एक्सेप्शंस, इनके अंदर क्या होता है हमारे पास,
अब क्रोमियम और कॉपर में क्या होता है, क्रोमियम और कॉपर में ये होता है कि इफ आई कैन जस्ट लुक एट देयर पैटर्न ओवर हियर, गिव मी अ सेकंड। वेट 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 अच्छा, तो क्रोमियम और कॉपर में क्या हो रहा होता है, क्रोमियम और कॉपर में ये हो रहा होता है कि आपका जो 4s है ना वो पहले फिल होता है, बट द कैच इज कि वो 4s2 तक फिल नहीं होता, एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि वो 4s1 तक फिल होता है, ठीक है। और ये भी उसी तरह 4s1 तक फिल होता है, ठीक है। इनका ये एक पैटर्न है, एंड यू विल नीड टू रिमेंबर दिस पैटर्न। तो लेट्स सपोज अगर मैं कॉपर की यहीं पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, तो कॉपर इज 29, right? So that's gonna be what? That's gonna be um 1s2, right? 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and then इधर क्या होगा? I'm actually just gonna write 4s इधर भी लिख सकते हैं, 4s इधर भी लिख सकते हैं। I'm just gonna write it after. तो 4s जो है ना, 4s is gonna be 1, ठीक है। 4s, अगर we talk about the 4s orbital, तो उसके अंदर बजाय दो इलेक्ट्रॉन्स आने के उसके अंदर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। वो इनकम्प्लीट रहेगा, यू गाइस नीड टू रिमेंबर दिस। इन कॉपर और क्रोमियम के लिए यू गाइस नीड टू रिमेंबर कि वो सिर्फ 4s1 तक फिल होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं ना 29 में से, वो सारे डी वाले ऑर्बिटल में चले जाएंगे। सो दैट इज गोना बी 3d10, ठीक है। सो नाउ इफ यू ऐड these up, that's 6, so that's 10. It's 10 electrons over there. ठीक है, this is 18 electrons, so that's 28. Wait, how much is that? 18. Oh, so my bad. ये यहाँ तक 18 हो रहा है, ये सारे मिलाकर 18 है, ठीक है। And then 18, and then this one is 10, and then this one is 1, right? So if you add those up, you get 28 plus 1, you get 29. So copper is 29, right? So बेसिकली कॉपर और क्रोमियम में क्या हो रहा है, कॉपर और क्रोमियम में ये हो रहा है कि the 4s is still getting filled first, लेकिन it's not getting filled completely, ठीक है। It's not going to be 4s2, it's only going to be filled till 4s1। और इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि इस अरेंजमेंट में these are more energetically stable। तो if you are asked the reason, so you're just going to say that this is more stable for copper and chromium than this, ठीक है। This is more energetically stable, इसकी ये reason है, that's why they're being filled in an incomplete way. So I hope you guys understand this, and इस वीडियो में जो हमने concepts पढ़े हैं, these are really important. This notation is really important. This fact is really important कि 4s जो है वो पहले fill हो रहा है, and फिर कॉपर एंड क्रोमियम में 4s पहले फिल हो रहा है लेकिन इनकम्प्लीट फिल हो रहा है। ये तीन चीज़ें जो हैं ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, एंड यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कन्फिग्रेशन ऐसी भी लिखी हुई आ सकती हैं। तो यू नीड टू नो बोथ वेज, आपको पूरी भी लिखनी आनी चाहिए और फिर आपको ये भी यूज़ करके लिखनी आनी चाहिए। एंड रिमेंबर, ठीक है, ये ए आर है। अगर आप कहो कि लेट्स सपोज मेरे पास जो है वो मैंने टेक एन एग्जांपल ओवर हियर, लेट्स से आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है। आप कहते हो कि यार हाइड्रोजन जो है ना उसमें की मेरे पास है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, हीलियम की मेरे पास जो है ना वो है 1s2। सो व्हाई नॉट आई जस्ट राइट हीलियम एज हीलियम इज हाइड्रोजन and then I write S1, or you cannot do that, ठीक है। पहले तो this thing is wrong, और दूसरा ये जो आप बॉक्स में लिखते हो ना, ये बॉक्स में लिखने वाली जो भी चीज़ हो है, I'm taking it as X, ठीक है। this has to be a noble gas electronic configuration, noble gas electronic configuration। and what I mean by that is कि देखो, अगर आपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, लेट्स सपोज आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, तो इट हैज़ टू बी किसी भी नोबल गैस की, लाइक हीलियम, आर्गन या नियॉन, एंड ओनली देन कैन यू से
कि अच्छा अगर कोई और एलिमेंट है अदर देन दीज नोबल गैसेस लाइक लेट्स से सोडियम, तो उसको हम लिख सकते हैं कि अच्छा नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और आगे फिर जो भी सोडियम की बकाया रह जाएगी। ठीक है, तो दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैज़ टू बी अ नोबल गैस। ठीक है, आप यहाँ पर हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को इधर पुट नहीं कर सकते, दैट्स नॉट द राइट वे टू denote these electronic configurations. ठीक है, so you guys need to keep these things in mind. That's it for today's video, and I'll see you guys in the next one.